الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. محترم حاضرین جمعہ، میرے دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کا بھی امتحان لیتا ہے۔ ان عدم الجزاء مع عدم البلاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جب بڑا انعام دینا چاہتا ہے تو بڑے امتحان سے گزارتا ہے۔ اللہ تعالی اگر کسی سے بڑا کام لینا چاہتا ہے، چاہے وہ فرد ہو یا وہ قوم ہو، چاہے وہ تنہا ہو یا جماعت ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے جھنجھوڑتے رہتا ہے تاکہ وہ بیدار ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسے کچوکے لگاتا ہے تاکہ وہ متنبہ ہو جائے، کیونکہ سویا ہوا آدمی بڑا کام نہیں کر سکتا ہے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا یہ لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ انہیں سال میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ آزمایا جاتا ہے، ان کا امتحان لیا جاتا ہے، انہیں جھنجھوڑا جاتا ہے، انہیں بیدار کیا جاتا ہے، انہیں سوچنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک تعالی کی سنت کا سامنا یا اللہ تبارک تعالی کی آزمائشوں میں استقامت دکھانا اور صبر سے کام لینا یہ بہت ضروری ہے۔ اور صبر کا کبھی یہ مطلب نہیں رہا ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں
اور مسجد میں ہاتھ اٹھا کے صرف جو ہے اللہ تعالیٰ سے آہوازاریاں کرتے رہیں، یا صرف تسبیح گنتے رہیں؟ مصلی کبھی مت چھوڑیں اور صرف بیٹھے رہیں مسجد کے اندر اور اللہ سے آہوازاری کرتے رہیں۔ یہ صرف صبر کا مطلب نہیں ہے۔ صبر کے معنی میں یہ داخل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے لو لگائیں، اللہ سے رشتہ مضبوط کریں، اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل دکھائیں، لیکن اسباب کے ساتھ ہمیں صبر کرنا ہے۔ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا ہے، اور صبر کا مظاہرہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اسباب اختیار کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو کائنات بنانی تھی، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ کن فیکون، وہ کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اسباب اختیار فرمائے ہیں، اور ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ کوئی بھی چیز بیک وقت حاصل نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ اس میں پائیداری کے لیے، اس میں پختگی کے لیے، اس میں مضبوطی کے لیے ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے، ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے، ہمیں اپنی محنتوں کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اور اپنے کردار کے ذریعے سے اس میں حصے داری کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، بلکہ اس سے پہلے میں بتاؤں، صبر کے بہت سارے معانی ہیں۔ صبر کا مطلب یہ ہے، لغوی مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو روکے رہیں، الحبس، روک لینا، یہی صبر ہے۔ اپنے نفس کو روک لیجئے۔ اس کی جو ہے اقسام 3 قسمیں علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ الصبر علی الطاعہ، اللہ کی بندگی پر صبر کرنا، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ نماز پڑھنا مشکل ہے، لیکن آدمی صبر سے کام لیتا ہے، اور گیراں باری کے ساتھ ہی صحیح لیکن مسجد میں تشریف لاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادتیں آسان نہیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی آدمی صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ تو یہ صبر علی الطاعہ ہے۔ اور صبر عن المعصیہ یعنی برائی سے اپنے آپ کو روک لینا، یعنی بہت ساری برائیاں ہیں جن کی طرف رغبت ہماری ہوتی ہے، ہمارا نفس چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف اقدام کریں، لیکن ہم نہیں آگے بڑھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ یہ صبر عن المعصیہ ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے اقدار یعنی اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا، یہ تیسری قسم ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے بارے میں فیصلہ ہے اسے اللہ کی تقدیر جانیں، اسے اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ جانیں، اور اس پر اپنے آپ کو روکے رکھیں اور آہو ہوگا نہ کریں، بلکہ صبر کا مظاہرہ کریں۔ تو یہ صبر کی 3 قسم ہوئی۔ اور استقامت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ڈٹ جائیے، آپ جم جائیے، جسے آپ اچھا سمجھتے ہیں آپ وہاں جو ہے ثبات قدمی کا مظاہرہ کیجئے، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ نظریہ ہو، چاہے آپ کا دین ہو، چاہے مذہب اور دھرم ہو، جسے آپ صحیح سمجھتے ہیں، جس سے آپ کا دل مطمئن ہے، آپ ڈٹ جائیے، آپ اس پر جم جائیے، آپ اس میں سمجھوتا مت کیجیے، آپ اس میں کسی سے مت ڈریے، آپ خوف کا مظاہرہ مت کیجیے، اس لیے کہ آپ نے حق کو اختیار کیا ہے، آپ نے جسے درست سمجھا ہے اسے اپنایا ہے، اور وہاں ڈٹ جانا ہے۔ یہ استقامت کا مطلب ہوا۔ تو صبر اور استقامت یہ دکھانا، یہ مومنوں کی پہچان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبر اور استقامت سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا امتحان بھی آپ پر ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائشوں میں بھی مبتلا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتحان یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولادیں ہوئی ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ تمام کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہو گئی ہے۔ اپنی اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں ڈالنا اور ان کے اوپر مٹی ڈالنا، انہیں دفن کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کام لیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری اپنی اولاد کی وفات پر آپ کی آنکھیں بھی بھر آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے بھی لگے۔ وہ روایت آپ لوگوں نے سنی ہوگی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننھے سے لگتے جگر کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اسے قبر میں اتار رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھری ہوئی ہیں،
आपकी आंखों से अश्क बह रहा है, आप रो रहे हैं। सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो सब्र और इस्तिकामत के इमाम हैं और आप भी अश्क बहा रहे हैं, आप भी रो रहे हैं। तब आपने कहा, इन्नल ऐन लतदमा व इन्नल क़ल्ब लयहज़न वला नक़ूलु इल्ला मा यर्दा रब्बुना। हाँ, हमें गम है, हमें दुख है, हमें तकलीफ है और हमारा सीना गम से भरा हुआ है, हमारी आंखों से अश्क जारी है, लेकिन जबान से कोई ऐसा जुमला नहीं निकालेंगे इस मुसीबत की घड़ी में, इस परेशानी के आलम में, जो अल्लाह तबारक तआला को पसंद ना हो। तो ये है सब्र, ये है इस्तिकामत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अभी कुछ वाक़यात के जरिए से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमे रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए मिसाल कैसे है, ये देखने की जरूरत है। तो अल्लाह तबारक तआला आजमाता रहा है, वलनबलुअन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक तआला ने कहा, वलनबलुअन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। यहाँ ये नजरिया भी दुरुस्त कर लीजिए कि अगर हमारे अपने दोस्त या हमारे अइज़्ज़ा और अकारिब का जब इम्तिहान होता है, तब हम कहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने उसे सबक सिखाया है। और जब हमारे दुश्मन का जब इम्तिहान होता है, तब हम कहते हैं उसके करतूत का नतीजा है और अल्लाह तबारक तआला ने उसे सबक सिखाया है। और जब अपनों का इम्तिहान होता है, तब हमें सब्र याद आता है, तब हम आजमाइश और इम्तिहान का नाम लेते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि अल्लाह तबारक तआला का इम्तिहान अपने पसंदीदा बंदों के साथ भी होता है, अपने भले बंदों का इम्तिहान भी अल्लाह तबारक तआला लेता है और अच्छे और पसंदीदा लोगों का भी इम्तिहान हो सकता है। इसी वजह से अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों, अल्लाह तबारक तआला के रसूलों, अल्लाह के अंबियाए किराम का भी इम्तिहान हुआ और उन्हें भी आजमाइशों में मुब्तला किया गया। तो अल्लाह का इम्तिहान अल्लाह की नाराजगी का सबब नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक तआला हमें झिझोड़ना चाहता है, हमें बेदार करना चाहता है और हमें ऊंचे मर्तबे पर फाइज करना चाहता है। इसलिए घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह ने कहा, तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, कभी तुम्हारे नफ्स के जरिए से, कभी तुम्हारे माल में कमी के जरिए से, कभी तुम्हारी औलाद और तुम्हारे लफ्ते जिगर को छीनने के जरिए से, और कभी और खौफो हरास के जरिए से, मुख्तलिफ असबाब के जरिए से तुम्हारा इम्तिहान लेते रहूंगा। और अल्लाह तबारक तआला के अच्छे बंदे वही हैं कि जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह ही के लिए हैं, अल्लाह की तरफ हमें पलट कर जाना है, देर सवेर हमें उसकी तरफ रुख करना है। अल्लाह तबारक तआला के यहाँ हम मुसाफिरों को हमारी मंजिल वही है और वहां जाना है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह तबारक तआला की रहमतें होती हैं, अल्लाह तबारक तआला का इनाम होता है। और ये बंदे अल्लाह तबारक तआला के बरगुज़ीदा हो जाते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, तो ये जानना सबसे अहम है कि अल्लाह तबारक तआला की आजमाइश किसी के साथ भी हो सकती है और किसी का भी इम्तिहान हो सकता है। और उसके बाद हमें ये देखना है कि हम कैसे सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा करें जब हमारा इम्तिहान हो, जब हमें आजमाइशों में मुब्तला किया जाए, जब हमें खौफ और हरास में मुब्तला कर दिया जाए, जब हमें डराया और धमकाया जाए, जब हमारे माल में कमी हो जाए, जब हमारी इक्तिसादी नाकाबंदी कर दी जाए, जब हमें सियासी तौर पर तोड़ने की कोशिश की जाए, जब हमें तालीमी तौर पर दूर रखने की कोशिश की जाए और हर महाज पर हमारे खिलाफ चालें चली जाएं, हर महाज पर हमारे खिलाफ साजिशों के जाल बुने जाएं, तब हम कौन सा रवैया अख्तियार करें और कैसे हम अजीमत के पहाड़ बने। मेरे भाइयों और दोस्तों, हमें अइम्मे किराम और उलमाए इज़ाम और रसूलों की जिंदगी का मुताला करना होगा और ये देखना होगा कि कैसे उन्होंने इस घड़ी को गुजारा है और कैसे उन्होंने हमारे लिए सबक छोड़ा है। अल्लाह तबारक तआला के अइम्मे किराम या रसूल और अंबियाए किराम
इन्होंने अपनी जिंदगी के जरिए से, अपने सब्र के जरिए, अपने इस्तिक़लाल के जरिए, अपनी सेवात कदमी के जरिए हमारे लिए बहुत सारी मिसालें छोड़ी हैं। अल्लाह तबारक तआला ने हमें उनकी जिंदगी का हमें मुताला करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कैसे जिंदगी गुजारी है मुसीबतों के वक्त। तो अल्लाह ताला ने इसी की तरफ रहनुमाई फरमाई और कहा कि इम्तिहान हमेशा किसी न किसी हालत में हमारा होता रहेगा। और एक दूसरी चीज ये है कि हम इसे अपनी जिंदगी का लाजमा समझें और ये सोचें कि इम्तिहान जब कड़ा होगा तभी अल्लाह का इनाम मिलेगा। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम वयअलमस साबिरीन। क्या तुमने ये सोच रखा है कि जन्नत में चले जाओगे और अल्लाह ताला ने तुम्हें अभी जांचा भी नहीं है, अभी तुम्हारे बारे में वाज़ेह भी नहीं किया है कि कौन ऐसा शख्स है जो अल्लाह की राह में जिहाद करता है, मेहनत करता है, अल्लाह की रजा का सामान करता है। जब तक अल्लाह तबारक ताला इस बात की तहकीक ना कर ले और इसे साबित ना कर दे तब तक तुम्हें जन्नत नहीं मिल सकती है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्रा। दूसरी जगह अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम्हें जन्नत में ऐसे ही पहुंचा दिया जाएगा, हालांकि अभी तुम्हारे ऊपर वो मुसीबतें आई ही नहीं है जो तुमसे पहले वालों पर आ चुकी थी। मुसीबत ऐसी थी कि कदम डगमगा गए थे, परेशानी ऐसी थी कि उनके कलेजे जो है हुलकूम तक पहुंच चुके थे और ऐसी हालत हो गई थी जैसे वो अंदर से हिला दिए गए हों। और मोमिनीन और उनके साथ रसूल अल्लाह के पैगंबर भी ये कहते थे, मता नसरुल्लाह अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद कब आएगी? तो सुन लो, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। अल्लाह की मदद पाने का सलीका होना चाहिए, अल्लाह की मदद हासिल करने का करीना होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे हुनैन का मौका है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारा माले गनीमत हासिल हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को 100 ऊंट दे दिए और किसी को 50 ऊंट दे दिए, बहुत सारा माले गनीमत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबाइल के सरदारान को दे दिया। एक आदमी ने अपनी जबान से शिकवा किया और ये बात कहा कि इंसाफ अभी हुआ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल से काम नहीं लिया है। अपने कबीले और अपने खानदान के लोगों को, कुरैश के दुश्मनान को, जिन्होंने आपके साथ साजिशें की हैं, आपके खिलाफ महादाराई की है, उन्हें आपने इतना नवाज दिया है कि हमारे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त अजीमत का मुजाहरा किया। आपने याद किया हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और फरमाया, रहिमल्लाहु मूसा कद ऊज़िया बिअक्सर मिन हाज़ा फसबर। अल्लाह तबारक तआला मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम करे कि उन्हें इससे ज्यादा आजमाया गया, उन्हें इससे ज्यादा मुसीबतों में मुब्तला किया गया, लेकिन उन्होंने सब्र का मुजाहिरा किया है। और एक जुमला आपने ये भी कहा कि इज़ा लम यअदिलिल्लाहु व रसूलुहु फमन यअदिल, कि अगर अल्लाह इंसाफ नहीं करेगा, अल्लाह का रसूल इंसाफ नहीं करेगा तो इंसाफ कौन करेगा? मेरे भाइयों और दोस्तों, यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से पहले अंबिया और रसूल को याद किया और ये बताया कि मेरे ऊपर अगर परेशानी आई है तो इससे पहले वालों पर भी आजमाइशें हुई हैं, उनका भी इम्तिहान हुआ है, उन पर भी परेशानियां आई हैं। इस तरीके से गम हल्का हो जाता है। साहबे किराम कहते हैं, जब हम में से किसी पर मुसीबत आती थी, जब कोई परेशानी में मुब्तला हो जाता था तो हम याद दिलाते थे और कहते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन याद कर लीजिए, जब पूरा मदीना सोगवार हो गया था, जब सबकी आंखों में अश्क थे और सब रो रहे थे। तो ये बड़ी परेशानी जब याद की जाती है और ये याद किया जाता है कि अल्लाह तबारक तआला ने ये चीज पहले वालों पर भी डाली है, तो गम किसी तरह से हल्का हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुसीबत के मौके पर यह बात फरमाई। और इसी तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का देखिए इम्तिहान किस तरीके से अल्लाह तबारक तआला ने लिया है कि बुढ़ापे का वक्त है, अल्लाह तबारक तआला ने आजमाइश एक और की और फरमाया, कहा अपने बेटे को कुर्बान करो। इन्हें एहसास होता है कि हो सकता है ये ख्वाबहाए परेशा हो, ऐसे मेरा ख्याल आ गया हो, लेकिन जब कई बार जो है इस तरह की बात आती है
तब ये इन्हें यकीन हो जाता है कि अल्लाह तबारक तआला मेरे बेटे की कुर्बानी मुझसे मांग रहा है। अल्लाह तबारक तआला के इस मुतालबे को पूरा करने के लिए उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने खुद इसे नकल फरमाया है कुरान पाक में, फलम्मा बलग मअहु सअया, जब वो चलने फिरने के लायक हो गया था, तब इन्होंने कहा, या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। इन्होंने कहा, मेरे लख्ते जिगर, मैं ख्वाब में इस तरह से देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तुम्हारी कुर्बानी दे रहा हूँ, तो तुम्हारी क्या राय है? तब उन्होंने कहा, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, उनके पास ये हीले हो सकते थे, ये बहाना हो सकता था कि वालिदे मोहतरम अब्बू जान इसे जाने दीजिए, ये वसवसा हो सकता है, ये ख्वाब हाय परेशान है, ये एक ख्याल है जो आते जाते रहता है। लेकिन वो तो अल्लाह तबारक तआला के बरगुज़ीदा बंदे और बरगुज़ीदा बंदे बनने वाले थे, अल्लाह के नबी बनने वाले थे, अल्लाह की रिसालत पाने वाले थे। इसलिए उन्होंने कहा, या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, जो आपको कहा जा रहा है वो कीजिए और इंशाअल्लाह मुझे आप सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो सब्र करने वालों में से पाएंगे मतलब ये हुआ कि सिर्फ मैं ही सब्र नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये मेरा इम्तियाज नहीं है, बल्कि इससे पहले और भी लोगों को सब्र करना पड़ा है, और भी लोग इस मकाम पर फाइज हुए हैं। तो आप मुझे उसी जुमरे में पाएंगे और उसी सफ में पाएंगे जिन लोगों ने सब्र किया है। अल्लाह तबारक तआला इम्तिहान लेता है, सब्र कराता है और अल्लाह ताला उसके बाद इनाम देता है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस सब्र के एवज में इनाम क्या मिला? अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्न इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा थे, लेकिन कहा ये पूरी उम्मत है। वो तन्हा थे, अल्लाह ताला ने कहा ये पूरी जमात है, इसलिए कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। जब भी अल्लाह तबारक ताला ने उनका इम्तिहान लिया तो उन्होंने मुकम्मल नंबरात हासिल किए और कभी कदम पीछे नहीं हटाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरह की मिसालें हमारे लिए छोड़ी हैं। जब अल्लाह ताला ने फरमाया फस्तक़िम कमा उमिर्त, आपको हुक्म दिया जा रहा है कि अब आप डट जाइए, अब आप जम जाइए, मुसीबतों का मुकाबला कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हुक्म के बाद ऐसे जम गए कि एक बालिश कभी भी कदम आपने पीछे नहीं हटाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डराया भी गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लालच भी दी गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मनसब भी पेश किया गया, लेकिन तमाम चीजों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रद्द फरमा दिया। आपकी मक्की जिंदगी का मुशाहिदा कीजिए, कितनी परेशानियां डाली गई, कैसे आपको ईजा दी गई, कैसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर पे बैठाया गया था, आपको सादिक कहा जाता था, आपको अमीन कहा जाता था, माशरे का सबसे बेहतरीन इंसान कहा जाता था, नजरों से गिरा दिए गए हैं, इतने गिराए गए हैं कि आपको गालियां तक दी जा रही हैं, आपका इस्तेहजा किया जा रहा है, आपको पागल कहा जा रहा है, आपको मजनू कहा जा रहा है, आपको दीवाना कहा जा रहा है। इसी पर इक्तफा नहीं है, बल्कि आप पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में इबादत कर रहे हैं, इबादत और बंदगी तो सबका हक था, लेकिन इसके बावजूद भी आपके ऊपर ऊंट जो है, ऊंट की ओझड़ी लाके डाल दी जाती है और लोग ठट्ठे लगाते हैं, लोग हंसते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के वफात के बाद आपको एक दफा एक गली में इतना मारा गया कि मक्के की एक गली में आप बेहोश होकर गिर जाते हैं। किसी ने आपकी बेटी को खबर दी कि तुम्हारे वालिदे मोहतरम को लोगों ने इतना मारा है कि वो बेहोश पड़े हुए हैं। नन्ही सी बेटी भागते हुए आती है, आप अंदाजा कीजिए, औलाद वाले हैं, जरा सोचिए कि एक बेटी के लिए उस पत्थर का सामना करना जो उसके ऊपर नहीं उसके बाप पे बरसाया गया हो, उन तानों और उन जुमलों का जो है सामना करना जो उसे नहीं बल्कि उसके बाप को सौगात में दिए गए हों, कितनी तकलीफ होती है। ये लफ्ते जिगर का जिगर छलनी हो जाता है जब इस तरह की बातें आती हैं। गमजदा दिल है और आंखों में आंसू हैं। अल्लाह तबारक ताला से इल्तिजा हो रही है कि अल्लाह ताला, लोगों ने मेरे इस बाप को मारा है जिसने कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, कभी किसी का हक नहीं मारा है, उसके साथ ये व्यवहार किया जा रहा है
और ये सलूक किया जा रहा है। मेरे भाइयों और दोस्तों, और भी मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुजूमी हमले होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अटैक होता है, लेकिन आपने कभी कदम पीछे नहीं हटाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत उमर अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, इनकी बहादुरी मशहूर है। एक दफा अपने साथियों के बीच बैठे हुए थे, याद करते हैं और जो है अपनी पुरानी तारीख याद करते हैं, फिर सवाल करते हैं, कहते हैं मेरे दोस्तों ये बताओ कि तुम उम्मत में सबसे बड़ा बहादुर किसे समझते हो? लोगों ने कहा आपने तो बहादुरी का लोहा मनवाया है, आपने बहुत से मार के अपने कुव्वते बाजू पर सर किया है, बहुत से बहादुरों को ज़ेर किया है, आपसे बड़ा बहादुर कौन हो सकता है? उन्होंने कहा नहीं, मेरी नजर में सबसे बड़ा बहादुर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु है। इसलिए कि मदीने की गलियों में मैंने देखा है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा दी जाती थी तो ये कहीं से कहीं भी होते थे, भागते हुए आते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में अपनी जान की परवाह किए बगैर लग जाया करते थे। उन्होंने खुद ये वाकया जिक्र किया, कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के की गली में एक दफा मारा जा रहा था, खबर मिलती है, भागते हुए आते हैं, भीड़ में घुस जाते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी को धक्के देते हैं, किसी को मारते हैं, और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाते हैं। कहते हैं तक़्तुलून रजुलन यक़ूल रब्बी अल्लाह, ऐसे आदमी को मारना चाहते हो जो सिर्फ ये कहता है कि मेरा परवरदिगार एक है, मेरा रब अल्लाह है, उसको तुम लोग मारना चाहते हो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डरा और धमका के आपके पाए इस्तिकामत में कमजोरी लाने की कोशिश की गई, लेकिन आपका पांव जमता गया, आपको लालच दी गई, आपको कहा गया कि अगर आप माल चाहते हैं तो हम अमीर लोग, हम सेठ लोग इतना माल जमा कर देंगे कि आप मक्के की वादी में सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। अगर किसी शहजादी से, कुरैश की खूबसूरत लड़की से शादी का इरादा है तो वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर ये मेरे हाथ में सूरज भी लाके रख दें और बाएं हाथ में चांद भी लाके थमा दें, फिर भी मैं जो मिशन लेकर उठा हूं वहां से पीछे नहीं हट सकता हूं। आपके चचा ने बुलाया, कहा अभी मक्के के लीडरान आए थे, फला फला सेठ आए थे, उन्होंने ऐसी ऐसी धमकियां दी हैं जो तुम्हारे बाप का सामना नहीं कर सकते थे, वो तुम्हारे चचा के आंखों में आंखें डाल के बातें कर रहे थे और मुझसे इस लहजे में बात करके गए हैं, लिहाजा मेरे भतीजे मेरे ऊपर इतना बड़ा बोझ मत डालो जो तुम्हारा चचा उठा ना सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भर तो आई लेकिन इस्तिकामत में कमी नहीं आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और आंखें भरी हुई हैं, आंखें डबडबाई हुई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे चचा जान आप सुन लीजिए कि मैं जो मिशन लेकर उठा हूं उसमें समझौता नहीं हो सकता है, उसमें कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। मैं अपनी जान दे दूंगा इस मिशन के लिए, मर जाऊंगा इस मिशन के लिए, लेकिन मैं इसमें समझौता नहीं कर सकता हूं। यही इस्तिकामत आज मुसलमानों को दिखाने की जरूरत है, यही बहादुरी आज मुसलमानों को दिखाने की जरूरत है। इम्तिहानात होते रहेंगे, आजमाइशें होती रहेंगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, हमारी कामयाबी यह है कि हमारा रवैया क्या होता है, हम कितनी बहादुरी का मुजाहरा करते हैं, हम किस कदर इस्तिकामत का मुजाहरा करते हैं। जरूरी है कि अल्लाह तबारक तआला की रजा का काम करें, इस्तिकामत से कभी पीछे मत हटें। अल्लाह तबारक तआला की नजर में हमारी सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि हम दीन पर जमे रहें। एक सहाबी आते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दूर रहता हूं आपसे, कोई आलिम हमारे यहाँ है नहीं जिससे मैं बहुत ज्यादा फतवे या सवालात कर सकूं, कोई ऐसी बात बता दीजिए कि इसके बाद किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कुल आमनतु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम, कहो मैं अल्लाह पर ईमान लाया हूं और उस पर डट जाओ, उस पर जम जाओ। आज जमने की जरूरत है, डटने की जरूरत है, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें इस्तिकामत अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला परेशानियों और मुसीबतों के वक्त में हमें सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी